Hello everyone. In this video tutorial or in this lecture, we are going to learn about the structure of bacteria or morphology of bacteria. Okay. Then first we have to know the bacterial morphology and structure of the bacterial cell. Bacteria is a prokaryotic cell. We know that already bacteria is a prokaryotic cell. What is meant by prokaryote? Let's discuss prokaryote meaning of prokaryote. Meaning of prokaryote is pro means early develop, okay, and karyon means nucleus. That's why bacteria or prokaryote organism carries a underdeveloped nucleus, means they don't carry the well developed nucleus. Okay, membrane bound nucleus is absent in a bacterial cell. That's why we call it a prokaryotic organism or prokaryotes. तर इसमें डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में। तो वन बाय वन हम यहाँ पे हाईलाइटन करेंगे पहले और बाद में डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट दैट इज द फिमरी एक्सटर्नली present on a bacterial cell. Fimri means there is nothing but the hair-like structure or blister-like structure present on a externally on bacterial cell that we called it a fimri. Okay, which helps to adhere the bacteria to the host surface or any other surface or in just in a water. Okay, then next one is a ribosome. What is meant by ribosome? Ribosome is a internally structure that is present in a cytoplasm, which is ribosome is present within the eukaryotic cell or prokaryotic cell. Okay, ribosome helps to the protein synthesis mechanism of the cell. Then next one is a cell wall. Cell wall is, we know that the bacteria cell wall composition is different from the eukaryotic cell wall composition. In other hand, eukaryotic cell carries a cellulose or calcium or magnesium composition of the cell wall, but in prokaryote or in bacterial cell there is peptidoglycans is present in a cell wall of बैक्टीरिया। ओके, इसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है सेल वॉल में और सेल वॉल हेल्प करता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ओके, देन नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल दिस लेट्स कंसीडर दिस इज अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन और उसमें गैप प्रेजेंट रहता है, उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ओके, तो जिसमें बीनीथ द सेल वॉल जो कंपोनेंट रहता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ होता है और वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज ए एक्ट होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज अ कैप्सूल। कैप्सूल और स्लिम लेयर को कलेक्टिवली कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल सॉरी कैप्सूल और स्लिम लेयर को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो इसमें क्या होता है, कैप्सूल एक हार्ड कोट होता है सराउंडिंगली टू द बैक्टीरियम। वो कहाँ से बना किससे बना हुआ होता है, वो पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, which is made up from the polysaccharide, and slim layer is also made up from the polysaccharide or protein, but which is loosely organized to the bacterial cell. Okay, then next component is the cytoplasmic matrix. तो cytoplasmic matrix में क्या रहता है, ये सेल का साइटोप्लाज्म रहता है, बैक्टीरियल सेल का ये साइटोप्लाज्म है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट साल्ट्स और जो मेटाबोलाइट लगते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, इट इज अ जिलेटिनस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, उसको ही हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बाद में है फ्लैजेला। तो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो तुम्हें फिगर में दिखाई दे रहा है वो एक फ्लैजेला है बैक्टीरियल सेल की। ओके, उसमें दिस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन which is actually originated from the cytoplasmic membrane of prokaryotic cell and extended towards the means ऐसा linearly convert होता है वो फ्लैजेला। ओके, फ्लैजेला हेल्प करता है बैक्टीरिया को लोकोमोशन करने के लिए और स्विमिंग करने के लिए बैक्टीरिया को हेल्प करता है फ्लैजेला के लिए। इसमें सिंगल एक फिलामेंट और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं फ्लैजेला में, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे।
तो नेक्स्ट है इसमें इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी और वो ग्रैन्यूल्स रहते हैं बैक्टीरिया में, वो फूड मटेरियल जो रहता है बैक्टीरिया का उसको स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। जैसा यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोजन एज अ स्टोर मटेरियल रहता है, स्टोर फूड मटेरियल रहता है, वैसे ही बैक्टीरिया में बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एसिड ऐसा एक कंपोनेंट रहता है, वो एज अ फूड मटेरियल सर्व करता है बैक्टीरिया को। ठीक है। उसके बाद में पिलस, जैसे वी नो दैट द एक्सटर्नल अपेंडेजेस लाइक फिमरी है और साइड फ्लैजेला है, और वैसा ही पिलस भी प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के ऊपर। ओके, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके ऊपर पिलस प्रेजेंट रहती है, which is help for the horizontal gene transfer, or we can say the transfer of plasmid from one bacterium, donor bacterium to the recipient bacterium, वो बाद में हम देखेंगे। उसके बाद में क्रोमोसोम, डीएनए और क्रोमोसोम ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो जनरली यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप न्यूक्लियस रहता है, यहाँ पे वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है बैक्टीरियल सेल में। जैसे कि जो सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है बैक्टीरिया का, वो साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं रहता है, वो साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड रहता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में। और एक ध्यान में रखना है कि यूकैरियोटिक डीएनए जो है वो बहुत बड़ा रहता है, उसकी जीनोम साइज बहुत बड़ी रहती है, और इसमें प्रोकैरियोटिक जो डीएनए रहता है कि वो बैक्टीरियल डीएनए जो रहता है वो उसकी साइज स्मॉल रहती है। ओके, तो इसके ऊपर हमें एक और प्लाज्मिड रहता है, वो प्लाज्मिड भी रहता है। वो प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, विच इज आल्सो हेल्पफुल फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, देन बाद में देखेंगे हम प्लाज्मिड क्या रहता है। तो ठीक है, उसमें और नेक्स्ट कंपोनेंट है एक्टिन फिलामेंट्स। ये तुम्हें फाइब्रस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ब्लू फाइब्रस स्ट्रक्चर, वो एक्टिन फिलामेंट से और उसको साइटोस्केलेटन भी हम बोल सकते हैं। वो हेल्प करता है बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्मिक इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का, और बैक्टीरिया को कंस्ट्रिक्शन और डिफरेंट ऑस्मेटिक कंडीशंस में मेंटेन करने का काम करता है। और इधर एक कंपोनेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, मैं कर्सर को घुमा रहा हूँ तो ये है मेसोसोम्स। ओके, which is mesosome is nothing but the invaginated part of the cytoplasmic membrane। okay, cytoplasmic और सेल मेम्ब्रेन का जो पार्ट है उसका ही इन्वेजिनेशन होता है, उसको हम मेसोसोम बोलते हैं। okay, mesosome which help for the replication of DNA or replication of the chromosome of bacteria, or which is also we can say the parallel organelle like structure present within the bacteria, that is parallel to the eukaryotic mitochondria। माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे एटीपी सिंथेसिस होते हैं और अदर सेलुलर मेटाबोलिटिक एक्टिविटी होते हैं, डिफरेंट साइकिल्स कैरिड आउट करता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म है वो मेसोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको याद में रखने का है। ठीक है, बाद में हम अब डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा तो बैक्टीरिया के बारे में। तो ये फिगर मैंने इंटेंशनली डाली है कि आपको बैक्टीरिया लैब में कैसा रहता है ये समझने के लिए। तो हम पहले जो इमेज थी, ये एक क्रॉस सेक्शन एनिमेटेड इमेज है, उसमें हम बैक्टीरिया के डिफरेंट पार्ट्स देखे हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि देयर इज अ प्लेट, पेट्री प्लेट, विच इज गवर्न विद द डिफरेंट कॉलोनीज ऑफ द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियली आइसोलेट करने के लिए न्यूट्रिएंट अगर मीडियम यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं Na अगर न्यूट्रिएंट अगर, which is a general medium used for the isolation of the bacteria, and after that inoculation we can grow that bacteria on a particular medium by providing the external application of nutrient। ओके, तो ये आपको व्हाइट कॉलोनीज दिखाई दे रही होगी, ये बैक्टीरिया की व्हाइट कॉलोनीज है। ओके, पर्टिकुलर दिस इज एग्जांपल ऑफ बैसिलस। ओके, बैसिलस का एग्जांपल है, उसमें आपको कॉलोनीज दिखाई दे रहे हैं। तो एक सिंगल कॉलोनी जो है बैक्टीरिया की, उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, ये सिंगल बैक्टीरियम नहीं है, ये कॉलोनी आपको दिखाई दे रही है,
तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। जब उसको हम स्लाइड पे लेते हैं, ठीक है, जो ग्लास स्लाइड है उस पे लेते हैं, और जब हम उसको लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे आफ्टर स्टेनिंग, तो हमें ऐसे टाइप के बैसिलस शेप के बैक्टीरिया दिखाई देते हैं। ओके, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, और हम जब उसको लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। वो जनरली हम विजुअली दिखाई नहीं देते हैं, वैसे ही देखेंगे तो, विदाउट स्टेनिंग देखेंगे तो, इसलिए हमको वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए हम उसको स्टेनिंग करते हैं, और वो स्टेनिंग करने के बाद में हमें ऐसे स्टेन कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। ये जनरली ये स्लाइड दिख रही है तुम्हें, या फिगर दिख रही है, उसमें मिथिलीन ब्लू का यूज किया हुआ है। जनरली मिथिलीन ब्लू इज अ एसिडिक stain which is used for the staining purpose of bacteria। ओके, हम फंगस को भी मिथिलीन ब्लू से स्टेन कर सकते हैं। तो एक याद में रखना है, बैक्टीरिया अल्ट्रा मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस से उसकी साइज थोड़ी कम है। ओके, बैक्टीरिया की जनरली साइज हम देखते हैं 0.3 to 4 माइक्रोमीटर तक होती है, या माइक्रोन तक होती है, ये याद में रखना है आपको। उसका जो लेंथ होता है अप टू जनरली एवरेजली 4 to 5 माइक्रोन तक होती है साइज, लेंथ उसकी, और उसकी ब्रेड्थ होती है 0.3 माइक्रोन से। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट स्पेसीज और डिफरेंट जेनेरा डिफरेंट साइज अवेलेबल होते हैं उसमें। और बैक्टीरिया याद में रखना है आपको, बैक्टीरिया जनरली जो लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर जो 100x ऑब्जेक्टिव लेंस रहता है उसके अंदर ही दिखता है, उसको ऑयल इमर्शन टेक्निक करने के बाद ही हमें ये बैक्टीरिया दिखाई देता है। 10x और 40x के अंदर ये दिखता नहीं है। ओके, और स्टेनिंग करना जरूरी होता है। और ये बॉटम मोस्ट इमेज आपको जो दिखाई दे रही है, दिस इमेज इज अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज ऑफ बैक्टीरिया इन द होस्ट सेल। ओके, होस्ट के जाइलम या फ्लोएम में बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, तो हम उसका माइक्रोटोमी करके जब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज करेंगे तो हमें ऐसे बैसिलस शेप स्ट्रक्चर दिखते हैं। ओके, ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इमेज है जो ब्लैक एंड व्हाइट में ही आता है। इस तरह से बैक्टीरिया का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको बताया है। और अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, मतलब बैक्टीरिया के कौन से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें अपेंडेजेस में देखते हैं हम एक्सटर्नली, तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट रहती है, फिमरी प्रेजेंट रहती है, और पिलस प्रेजेंट रहती है। ओके, ये 3 ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, हम पहले ही फिगर में देख चुके हैं उसमें। तो जो फ्लैजेला है वो क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को। देन अदर जो अटैचमेंट और चैनल्स रहते हैं वो फिमरी और फिलस बैक्टीरिया को अटैच करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, आदरंस प्रोवाइड करते हैं, वो याद में रखना है आपको। और नेक्स्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स आपको बताया था कि ग्लाइकोकैलिक्स इज नथिंग बट द कलेक्टिवली वी कॉल इट अ कैप्सूल। जो हार्ड कोर्स रहता है कैप्सूल और स्लिम लेयर, उसको ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ठीक है, सरफेस कोटिंग बैक्टीरिया के सेल वॉल पे वो सरफेस कोटिंग प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट इज फ्लैजेला। तो फ्लैजेला में थोड़ा हम डिटेल में लेंगे, तो इन दिस फ्लैजेला इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। वन इज फिलामेंट, देन सेकंड हुक, एंड थर्ड वन इज अ बेसल बॉडी। तो इसमें आपको इमेज दिख रही होगी, तो इमेज में हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसमें जो एक लॉन्ग थिन हेलिकल स्ट्रक्चर जो है, जो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो ग्रीन कलर का, ये ऐसा कंटिन्यूसली लिनियर रहता है, बहुत बड़ा रहता है, ये माइक्रोस्कोपिक रहता है। और इसमें जो ये थिन लेयर फिलामेंट दिख रहा है तुमको, यही है फिलामेंट। ओके, इधर लिखा हुआ है, यह है फिलामेंट ग्रीन स्ट्रक्चर, वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, उसका मोनोमर यूनिट है फ्लैजेलिन प्रोटीन। डिफरेंट अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें। तो नेक्स्ट दिस इज अ फिलामेंट, एंड नेक्स्ट पार्ट इज अ हुक। ये आपको मैं कर्सर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये हुक है, और ये एक प्रकार का एक कर्व शेप
पार्ट प्रेजेंट रहता है फ्लैजेला में, उसको हम एक प्रोपेलिंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल फ्लैजेला को ये। ओके, उसकी वजह से ही बैक्टीरिया अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ड्यू टू द दिस इज अ वेरी फ्लेक्सिबल ऑर्गन, they can show the bacteria up to 360 डिग्री डायरेक्शन में मूव कर सकता है बैक्टीरिया, ड्यू टू दैट कर्व शेप बॉडी। हुक की वजह से बैक्टीरिया 360 डिग्री में भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ओके, फ्लेक्सिबल रहता है। तो बाद में आता है बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी में डिफरेंट रिंग्स प्रेजेंट रहती है। तो उसमें हमें दिख रहा है सेंट्रल एक जो सेल वॉल है, सेल वॉल में एम्बेडेड होता है, या मीन्स एक्चुअली फ्लैजेला ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से जनरेट होता है या उससे ओरिजिनेट होता है, और अप टू द सेल वॉल जो बेसल बॉडी है प्रेजेंट रहते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के रिंग रहते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने रिंग्स रहते हैं। तो उसमें जो बेसल रिंग रहती है, एस और एम रिंग जो रहती है बेसल रिंग्स, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्रोवाइड करती है फ्लैजेला को। ओके, मीन जहां से फोर्स मीन्स बेसल बॉडी क्या करती है, फोर्स जनरेट करती है, और उसका फोर्स कन्वर्ट होता है थ्रू द बॉडी और थ्रू द फिलामेंट। इस वजह से बैक्टीरिया स्विम कर पाता है। ओके, वो स्विमिंग डिपेंड करती है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस और एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो उसमें एक्सटर्नल स्टिमुलाई में भी जब बैक्टीरिया वाटर में प्रेजेंट है, उसके एरिया में और उसके एनवायरनमेंट में कोई केमिकल प्रेजेंट है, तो उसकी तरफ मूवमेंट करेगा। उसको हम जो बोलते हैं केमिकल्स के टुवर्ड्स मूवमेंट करता है बैक्टीरिया, हम उसको केमोटैक्सिस बोलते हैं। ओके, इट में भी नेगेटिव केमोटैक्सिस और it may be negative chemotaxis or it may be positive chemotaxis. Okay, also bacteria shows the phototaxis, means जब लाइट प्रेजेंट रहता है तो लाइट की तरफ और फोटॉन्स की तरफ बैक्टीरिया अट्रैक्ट होता है। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहते हैं वो फोटोटैक्सिस, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस मूवमेंट दिखाते हैं। उस वक्त फ्लैजेला का बहुत बड़ा रोल होता है, याद में रखना है आपको। ठीक है, तो और एक है डिफरेंट बैक्टीरिया में मॉर्फोलॉजिकली हम मालूम है बैक्टीरिया बैसिलस शेप का और स्फेरिकल शेप का रहता है। तो जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया रहते हैं उनको हम कोकाई बोलते हैं या कोकस बोलते हैं। जो सिलिंड्रिकल शेप के बैक्टीरिया रहते हैं हम उसको बैसिलस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्लैजेलेशन बैक्टीरिया का डिवाइडेशन हुआ है डिफरेंट कैटेगराइजेशन में। उसमें जो बैक्टीरिया के ऊपर फ्लैजेला एब्सेंट रहती है उसको हम अट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, हम इधर एक ब्लैक स्क्रीन लेते हैं, उसके ऊपर इजीली आपको बता सकूंगा। तो अट्राइकस, व्हाट इज मीन बाय अट्राइकस बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला एब्सेंट होती है उसको हम अट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। और मोनोट्राइकस के बारे हम क्या कह सकते हैं, तो मोनोट्राइकस मीन्स वन सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट रहता है, तब हम उसको मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। व्हेन top flagella present on one end of bacteria, then we call it a Lophotrichus. Okay, that condition we call it a Lophotrichus. When both side of bacteria presence of when both side of bacteria embedded with the presence of flagellum, then we call it a Amphitrichus bacteria. Okay, maybe top flagella present on a both side or single polar flagellum present on a both side. In that condition we call it a Amphitrichus. And then when all over the body of bacteria flagella are present, then we call it a Peritrichus बैक्टीरिया। ओके, दिस कंडीशन को हम पेरिट्राइकस कहते हैं और वो बैक्टीरिया को हम पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स है। मोनोट्राइकस का हम लेते हैं तो उसमें ज़ैंथोमोनास है, और लोफोट्राइकस का एग्जांपल लेते हैं तो हम उसको सूडोमोनास का एग्जांपल है, और उसमें एम्फीट्राइकस में सूडोमोनास भी आता है। तो और पेरिट्राइकस का एग्जांपल लेंगे तो हम इसमें इस्चर्चिया कोलाई का एग्जांपल ले सकते हैं, और या इरविनिया का एग्जांपल ले सकते हैं। इस तरह से फ्लैजेलेशन से डिफरेंट बैक्टीरिया का कैटेगराइजेशन किया हुआ है। ठीक है।
तो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसमें हम फिमरी। तो मैंने पहले ही बताया है फिमरी क्या है। फिमरी 1 मिनट, 1 मिनट, लेट्स टेक अ पेन एंड जस्ट इसमें फिमरी क्या है। एक ये इमेज दिख रही है आपको, ये एक फ्लोरोसेंट इमेज है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप के अंडर ली हुई। इसमें क्या होता है, फिमरी जो रहता है इतना फाइन रहता है तो हमें विजिबल नहीं होता अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इसकी वजह से हम उसको पर्टिकुलरली एक सिलेक्टिव स्टेन यूज करते हैं फिमरी को स्टेन करने के लिए, या फ्लोरोसेंट डाई यूज करते हैं। तो आपको फिगर में इजीली दिख रहा होगा, जो फाइन प्रोटीनेशियस हेयर लाइक ब्रिस्टल और हेयर लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सराउंडिंग प्रेजेंट है, वो क्या जो इमर्ज हुए हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल से, उसको ही हम क्या कह सकते हैं, उसको ही हम कह सकते हैं फिमरी। और ओके, फिमरी कह सकते हैं उसको हम। तो वो येलो कलर का जो फ्लोरोसेंटली ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है फिमरी, और अनदर जो ब्राउन कलर का दिख रहा है वो बैक्टीरिया का कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो फिमरी का फंक्शन क्या है पहले ही मैंने बताया है। फिमरी विच हेल्प्स टू एडेजन टू द होस्ट सेल और मे बी एनी सरफेस। ठीक है, होस्ट सेल के ऊपर एडेजन करने के लिए या स्टिकअप करने के लिए बैक्टीरिया उसका इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं जनरली जो इधर बॉटम मोस्ट पिक्चर दिख रही है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, उसमें क्या है, जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो एदर हुए हैं ऑन द इंटेस्टाइन पार्ट। इंटेस्टाइन के ऊपर जो माइक्रोविलाई होते हैं उसके ऊपर एदर हुआ है बाय यूजिंग अ फिमरी। हमें मालूम है मैमलियन गट्स में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। Okay, this is a overall structure and morphology and function of the fimri. Next one is the pilus. तो हम सिंगुलरली हम उसको पिलस कहते हैं और प्लूरली हमको उसको पिली कहते हैं। पिलस इज नथिंग बट द रिजिड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ओके, हमने रिसेंटली देखा है फ्लैजेला का फिलामेंट पार्ट जो है फ्लैजेला का, वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है, और इधर जो पिलस है उसका पार्ट जो है वो पिलिन प्रोटीन की वजह से बना हुआ है। ओके, इट इज फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव सेल। जो ग्राम नेगेटिव सेल्स रहते हैं उसमें ही पाया जाता है ये पिलस अपेंडेज। ओके, विच फंक्शन टू जॉइन द बैक्टीरियल सेल फॉर पार्शियल डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम कंजुगेशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, या बैक्टीरियल जेनेटिक्स कहते हैं हम उसको, या आल्सो वी कॉल्ड इट द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में क्या होता है, जो बैक्टीरिया में ये फिगर आपको दिखाई दे रहे होगी, उसमें बैक्टीरिया में प्लाज्मिड रहता है। तो वो प्लाज्मिड डोनर बैक्टीरियम टू रिसिपिएंट बैक्टीरियम में पहुंचना है, मीन्स उसका बैक्टीरिया को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो बैक्टीरिया किसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको पिलस का इस्तेमाल करते हैं। और जो कंजुगेशन होता है ये होल प्रोसेस किसकी वजह से होता है, ये पिलस की वजह से होता है, आपको याद में रखना है। ओके, व्हेन डोनर बैक्टीरियम ट्रांसफर प्लाज्मिड फ्रॉम द पिलस to the recipient bacterium, we call it a conjugation process. Okay, next one is a glycocalyx. तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, एक एक्सटर्नल पार्ट जो है हमें हम पहले ही बोल चुके हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स मीन्स नथिंग बट द कलेक्टिवली वी कॉल्ड इट अ स्लिम लेयर एंड कैप्सूल। तो उसमें जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो जनरली बना हुआ रहता है पॉलीसैकेराइड से, जो शुगर्स रहते हैं पॉलीसैकेराइड्स उससे, और या प्रोटीन से बना हुआ होता है। जनरली पॉलीसैकेराइड ही प्रेजेंट रहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स पे। जो बाद में उसमें 2 टाइप्स के वेरिएशन देखने को मिलते हैं बैक्टीरिया में। उसमें एक स्लिम लेयर रहता है और कैप्सूल रहता है, नेवर प्रेजेंट बोथ। ओके, तो जो स्लिम लेयर रहता है वो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा होगा, जो लूजली ऑर्गेनाइज रहता है और लूजली अटैच रहता है ऑन अ बैक्टीरियल सेल सरफेस। ओके, ये स्लिम लेयर है, ग्रीन पार्ट में दिख रहा है आपको। और कैप्सूल जो रहता है वो हाईली ऑर्गेनाइज थिन रहता है और टाइटली अटैच रहता है टू द बैक्टीरियम। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसमें कैप्सूल हाईली डेवलप रहता है, बिकॉज कैप्सूल कैरीज अ पैथोजेनिसिटी फैक्टर, मीन्स दे हैव अ कैरेक्टर टू प्रोड्यूस अ डिसीज। ओके, और कैप्सूल का जनरली फंक्शन क्या है,
it prevent the dehydration of the bacteria, and it also maintain the structure of the bacteria, और यह मीन्स ऑस्मेटिक कंडीशन जो है बैक्टीरिया की, वो ऑस्मेटिक कंडीशन भी मेंटेन करता है कैप्सूल। ओके, ये आपको याद में रखना है। और इट्स कैरीज अ पैथोजेनिसिटी फैक्टर, मीन्स इट्स कैरीज अ कैरेक्टर दैट प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल डिसीज विद इन द ससेप्टिबल होस्ट। ओके, दिस इज अ कैप्सूल। देन यह कैप्सूल पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है, ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट इज अ सेल एनवलप। एक्सटर्नल पार्ट्स देख लिए हमने, तो हम सेल एनवलप देखेंगे। सेल एनवलप इज नथिंग बट द सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो एक्सटर्नल सेल वॉल रहती है उसको हम और सेल मेम्ब्रेन रहता है उसको हम सेल एनवलप कह सकते हैं। तो ये एक्सटर्नल कवरिंग आउटसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहती है। जो टू बेसिक लेयर है, हमने बताया कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। तो फर्स्ट देखते हैं हम सेल वॉल। तो सेल वॉल में क्या रहता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल एक जनरली अलग रहती है यूकैरियोटिक सेल वॉल से। तो उसमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, 1 मिनट, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन एक ऐसा मटेरियल रहता है, प्रोटीनियस मटेरियल। तो उसमें डिफरेंट मोनोमर यूनिट रहते हैं। उसमें नैग मॉलिक्यूल और नैम मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। नैग और नैम का मतलब होता है एन एसिटामाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड रहता है। ओके, वो 1,4 डाइस्टर बीटा 1,4 डाइस्टर लिंकेज से बंधा हुआ रहता है। वो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट रहता है सेल में। वो तो उसकी वजह से बैक्टीरिया को और क्लासिफाई किया है। ओके, मीन्स बैक्टीरिया का जो सेल वॉल कंपोजिशन है उसके अकॉर्डिंगली बैक्टीरिया को डिवाइड किया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। ओके, तो ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन जो रहती है उसके ऊपर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। उसमें क्या रहता है, जनरली बेसिक डिफरेंस यही है उसमें कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रहते हैं उसमें अप टू 80 to 90% पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है उसके सेल वॉल में। मीन्स हायर कंपोजिशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट विद इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रहते हैं उसके सेल वॉल में जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो 20 to 30% मीन्स 10 to 20% प्रेजेंट रहता है। मीन्स कम प्रेजेंट रहता है पेप्टिडोग्लाइकन इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके, यही है डिफरेंस मेन उनका ग्राम स्टेनिंग रिएक्शन का। नेक्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल रहता है। तो उसमें जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है। तो हम फिगर में देखेंगे उसमें वो आपको ब्राउन कलर के पिन हेड शेप दिख रहे हैं, वो बाइलेयर है, वो फॉस्फोलिपिड का लेयर है। ये लेयर है फॉस्फोलिपिड का लेयर, और उसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स रहते हैं। जो आपको ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ग्रीन या पर्पल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये डिफरेंट प्रोटीन्स रहते हैं। ये एम्बेडेड रहते हैं विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। ओके, उसको ही हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेमी परमेएबल रहता है। मीन्स सिलेक्टिवली परमेबल रहता है। उसमें क्या होता है, जब बैक्टीरिया कोई डाइजेशन करता है या फैगोसाइटोसिस प्रोसेस करता है तो उसकी वजह से जो वेस्टेज मटेरियल है वो सेल के बाहर फेंकना पड़ता है। तो वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर प्रोटीन रहते हैं, उसको हेल्प करते हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए। ओके, डाइजेस्टिव वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। वैसे ही सेल को न्यूट्रिशन लगता है, तो न्यूट्रिशन जब साइटोप्लाज्म में एंटर करता है वो सिलेक्टिवली एंटर करता है। Okay, means this is a selectively semi-permeable membrane which helps to metabolism or discharge of digestive waste. Okay, next one is आपने अब तो बाहर जो रहता है एक्सटर्नली वो देख लिया बैक्टीरिया में। अब इंटरनली क्या प्रेजेंट रहता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, तो उसमें रहता है साइटोप्लाज्म। कलेक्टिवली हम सब प्रोटीन सब कलेक्टिवली जो मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेल में प्रेजेंट रहता है। उसमें डेंस जिलेटिनियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स, मींस डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स और शुगर्स प्रेजेंट रहते हैं उसमें।
और अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के मोनोमर है, और डिफरेंट साल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करता है सेल का। बाद में हमें तो मालूम ही है कि सेल, कौन सी भी सेल है उसमें 70% या 80% वाटर रहता है, which acts as a universal solvent for the different reaction carried out within the cytoplasm of the bacterium. Okay. वैसे ही बैक्टीरिया में न्यूक्लियड रीजन प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियड रीजन मीन्स जो जहाँ पे तुम्हारा डीएनए प्लेस हुआ है बैक्टीरिया में, उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉइड और न्यूक्लियड रीजन। जनरली मीन्स न्यूक्लियर रीजन जो रहता है वो बेसिक रहता है, तो वो हम बेसिक रहता है, इसकी वजह से हम उसको एसिडिक डाई यूज करके डाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को, और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं ये न्यूक्लियर रीजन को। तो जो क्रोमोसोम रहता है, बैक्टीरिया का क्रोमोसोम ऑलवेज एक रहता है, उसको हम हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कहते हैं या वन क्रोमोसोम नंबर कहते हैं, ऑलवेज वन रहता है, ये याद में रखना है। ओके, तो वो सिंगल रहता है, सिंगल सर्कुलर रहता है और डबल स्टैंडर्ड रहता है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए मीन्स ऐसा डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है उसका, 2 एंटीपैरेलल स्ट्रैंड है, रन होते हैं उसके ऊपर, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉन्जर्व करता है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोडिंग में प्रेजेंट रहती है उसके ऊपर। ठीक है, तो वैसा ही एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नेटवर्क प्रेजेंट रहता है बैक्टीरिया में। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नेटवर्क रहता है वो रहता है प्लाज्मिड। ओके, प्लाज्मिड साइज में छोटा रहता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स के कंपैरिजन में, और इट्स अ फ्री स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, which is not essential for the growth and metabolism of the bacteria. ओके, प्लाज्मिड सेल का मेटाबॉलिज्म कैरिड आउट करने के लिए उसके ऊपर जीन प्रेजेंट नहीं रहते। मे बी प्लाज्मिड के ऊपर स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रेजेंट करते हैं। मे बी सम पैथोजेनिसिटी जीन प्रेजेंट रह सकते हैं, या सम जीन प्रेजेंट रहते हैं, लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिन जो है उसके ऊपर टीआई प्लाज्मिड जो रहता है उसको ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्रेजेंट रहते हैं उसमें, प्लाज्मिड में। ठीक है, ये जो प्लाज्मिड है उसका ऊपर जो जीन प्रेजेंट रहते हैं वो ट्यूमर इंड्यूस करते हैं प्लांट्स में। वैसे स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट रह सकते हैं, लेकिन होल मेटाबॉलिक एक्टिविटी या ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल जीन चाहिए या जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म चाहिए वो प्रेजेंट नहीं रहता है प्लाज्मिड के ऊपर, ये याद में रखना है। इसलिए प्लाज्मिड इज अ यूज एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, जो हम जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, जो बीटी जीन है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस का बीटी जीन है, वो हमने इनकॉर्पोरेट किया है कॉटन प्लांट में, उसको हम ट्रांसजेनिक क्रॉप बोलते हैं। ओके, बीटी कॉटन बोलते हैं ना उसका हम, जो बोलोन कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट अटैक करता है। तो ये इस तरह से हम ट्रांसजेनिक प्लांट या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्लाज्मिड का यूज करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ बैक्टीरियल राइबोसोम। We know that the ribosome is present both in eukaryotic cell or prokaryotic cell, but in eukaryotic cell ATS type ribosome is present, and in case of prokaryotic cell 70S ribosome are present. तो जनरली राइबोसोम्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उसमें प्रोटीन और आरएनए रहता है। जो राइबोसोमल आरएनए है वो प्रेजेंट रहता है और प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। इसमें दिखाया है मेड अप फ्रॉम द 60% राइबोसोमल आरएनए एंड 40% प्रोटीन। और एक याद में रखना है आपको, जो राइबोसोम रहता है वो राइबोसोम एक बिगर रहता है और एक स्मॉलर यूनिट रहता है उसमें। ओके, इधर ये लार्ज सब यूनिट रहता है 50S टाइप का, और एक स्मॉल सब यूनिट रहता है वो ये 30S टाइप का। और इधर ES जो बोल रहा हूँ मैं, वो ES क्या है, विच इज नथिंग बट द Swedberg unit. Okay, this is a Swedberg unit. Swedberg unit means it is nothing but the Swedberg जो साइंटिस्ट है उसने ये 80S और 70S टाइप राइबोसोम्स का मीन्स उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ये डिस्क्राइब किया है। मीन्स जब हम उसको इस राइबोसोम को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो 80S पे वो सेडिमेंटेशन दिखाएगा, उस सेडबर्ग यूनिट पे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में सेडिमेंटेशन दिखाएगा। इसकी वजह से हम उसको
80s, और डिफरेंट उसके सब यूनिट्स है 50s 30s उसको बोलते हैं। जब इसमें क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब क्या होता है, जो tRNA रहता है वो जो सेल साइटोप्लाज्म में डिफरेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं उसको ले आता है टुवर्ड्स राइबोसोम और उस पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और जो अमीनो एसिड है उसकी लॉन्ग चेन बन जाती है और उससे से प्रोटीन बन जाता है, उसमें राइबोसोम हेल्प करता है। राइबोसोम पे राइबोसोमल आरएनए पहले से ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है बैक्टीरियल राइबोसोम और एनी टाइप ऑफ राइबोसोम व्हिच हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऑल्सो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में, जिसमें हमने इंक्लूजन बॉडीज बताया और उसको ही हम ग्रेन्यूल्स कहते हैं। वो स्टोर्ड फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करता है, ओके। जो फूड ग्रेन्यूल्स रहते हैं उसमें डिफरेंट फूड मटेरियल स्टोर फॉर्म में रहता है, जो कि डिफरेंट उसका कंटेंट और उसका साइज और नंबर डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट रह सकता है, okay. According to different generic bacteria there is variation in the granules of the bacteria. Then bacterial cell can use them environmental sources are depleted, मीन जब बैक्टीरिया को होस्ट मिला हुआ है तब ये बैक्टीरिया स्टोर फूड यूज नहीं करता, लेकिन जब बैक्टीरिया स्टार्वेशन में जाता है, जब एक्सटर्नली उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तब ये वोलेटिन ग्रैन्यूल्स रहते हैं या जो इंक्लूजन बॉडीज रहते हैं उसमें से जो स्टोर्ड फूड मटेरियल रहता है बैक्टीरिया का इन द फॉर्म ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट उसका यूज करते हैं और उसके प्रोजेनी डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा है। वैसे ही बैक्टीरिया में डिफरेंट ग्रैन्यूल्स रहते हैं लाइक मैग्नेटोसोम्स, और जो वैक्यूल्स रहते हैं वैक्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में, जो कि बैक्टीरियल सेल की बायोंसी मेंटेन करने के लिए बने हुए रहते हैं, ठीक है। वैक्यूल्स बायोंसी मेंटेन क्यों करने पड़ते हैं बैक्टीरिया के लिए, बिकॉज इट दैट हैव टू रिड्यूस द ग्रेविटेशनल पुल। में ग्रेविटेशनल पुल को रिड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया बायोंसी मेंटेन करता है, वो वैक्यूल्स की वजह से आती है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट स्मॉल स्ट्रक्चर्स बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं। वैसे ही साइटोस्केलेटन है या एक्टिन फिलामेंट्स है वो बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म को इंटीग्रेटेड मेंटेन करते हैं या साइटोप्लाज्म को डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है, ओके। इंटरनल नेटवर्क जो रहता है क्लोजली प्रोटीन पॉलीमर्स का, वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है सेल वॉल के ऊपर, और वो बैक्टीरिया को इंटीग्रिटी मेंटेन करने का काम करता है। इस तरह से आपका बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी है, और उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट फंक्शंस है, ओके। ये तो बैक्टीरिया का जनरलाइज हो गया, और बैक्टीरिया का बहुत डिटेल में भी स्टडी रहता है, हम उसको 3 या 4 आवर तक भी पढ़ा सकते हैं। ये तो जनरल स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरिया का, ठीक है।